Hello students, welcome you all in our YouTube channel GenNext EduHub. Today we will start class 10th chapter Real Numbers Introduction part. Okay. The number system is basically divided into two categories, real numbers and imaginary numbers. Real number, most of you know about the real numbers, and imaginary number is not in the syllabus of class 10th. I will give you some example of imaginary number. Whenever there is root, whenever there is negative sign in root, then it will be an imaginary number. You will study in class 11th and 12th only. Okay, this is real number part. Real number, all these numbers comes in the category of real numbers. Okay, first of all, natural numbers. Natural numbers are the number which starts from 1. As you all know, they are starts from 1. We can memorize it as natural numbers, the numbers which gives us to us by the nature. ऐसे नंबर जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए, नेचर ने हमें हर चीज कंप्लीट फॉर्म में प्रोवाइड की है. 1, 2, 3, it will never be 3.5 or 5.5 or 10.5. There are 10 students in the class. ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. There can never be 9.5 students in the class. Okay, nature has given us the number in complete form. Okay, 0 is also not given us by nature, because we can never say there are 0 student studying in the class. Okay, it can never be happen. We can say there is no one studying in the class. Okay, so natural number starts from 1 up to infinite. Okay, is it clear to all of you? Now whole numbers. Whole numbers are the natural numbers only which includes 0 in it. Whole numbers are the natural number itself which includes 0. These are the whole number. Okay. Now what are integers? Integers की definition, सभी positive numbers, all the positive number and their negative numbers with 0. All the positive and negative numbers with 0 are called integers, or the numbers which can be drawn on the number line are called integers. Is it clear to all of you? Okay. Now rational numbers. Rational numbers, these are the numbers which are in the form of p upon q. Example 1 upon 2, 3 upon 4. I will take this topic later on separately. Rational number and irrational number. एग्जाम्पल है 0.15, 3.23, ये सभी रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं. और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल √3, √5, जो भी परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो नंबर्स हैं उन सभी के रूट्स, और स्पेशली पाई इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर. इज इट ओके? नाउ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. ओके, व्हाट आर रैशनल नंबर? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जहां नेसेसरी कंडीशन है q कैन नेवर बी 0. यहां तक तो आप सभी लोग जानते हैं. और p और q हरदम इंटीजर को ही बिलोंग करेंगे. p एंड q ऑलवेज बिलोंग्स टू द इंटीजर ओनली. ओके, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर -5 upon 7. इट इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q. q is not equals to 0. And -5 is also an integer and 7 is also an integer. 4 upon 33, it is in the form of p upon q. 4 is the integer and 33 is also an integer. Okay. अब रैशनल नंबर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. अगर नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है और सॉल्व करने के बाद वो अगर एक टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब डेसिमल के बाद अगर वो नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो वो जो नंबर है वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है. जैसे 1 upon 2, सॉल्यूशन विल बी व्हेन वी डिवाइड इट विल बी 0.5. द आंसर विल बी कंप्लीट हियर. 3 upon 4, व्हेन वी डिवाइड 3 upon 4, द कंप्लीट आंसर इज 0.75. द रिमाइंडर आफ्टर दिस विल बी 0. So the terminating numbers after the decimal are also comes in the category of rational number. ओके, बट अगर ऐसा है कि नंबर डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होता, अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग भी है, मतलब सर्टेन डिजिट की फॉर्म में अगर वो रिपीट हो रहा है, तो नंबर भी किसी कैटेगरी में आएगा? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा. जैसे 1 upon 3, इट इज 0.33333 अप टू इनफाइनाइट. Okay, we can write it as
0.3 बार। ओके, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब खत्म नहीं हो रहा, बट 3 डिजिट की फॉर्म में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। इज इट ओके? नेक्स्ट एग्जांपल इज 2/7. 2/7 will be 0.285714, then it start repeating 285, that means it is 0.285714 bar. That means it is repeating in these 6 digits. Okay, so it will come in the category of rational numbers. It is okay. Now irrational number. Irrational number इसका just opposite है। irrational number the numbers which are non terminating, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होगा, डेसिमल के बाद वो खत्म भी नहीं होगा, एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं होगा, मतलब जिद है कि डेसिमल के बाद वो नंबर ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। ऐसे नंबर्स आते हैं इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। एग्जाम्पल 3.4924397, कोई पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है जिसमें रिपीट हो रहा है? नहीं, ये रैंडमली नंबर चल रहे हैं। एक तो ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा और दूसरा ये किसी फॉर्म में रिपीट भी नहीं हो रहा डेसिमल के बाद, तो ये इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में लाया करेगा। ऐसे 0.73256923 कुछ भी ब्ला 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 जो भी नंबर्स हैं वो ना टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल के बाद, ना ही रिपीट हो रहा है, तो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ इर्रेशनल नंबर। ओके, सेम टू सेम लाइक दैट 29.131 29536 randomly it is going on, it is non terminating also and not repeating also. Okay, so they are irrational number. सभी नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो सब इर्रेशनल नंबर आते हैं। √3, √5, √7, √8, √10, √11 all comes in the category of irrational number. So it is clear now what are rational numbers and what are irrational number. ये सभी चैप्टर 1 NCERT बुक्स एंड चैप्टर 2 राजस्थान बोर्ड RBSC के बुक्स में आपके काम में आने वाला है। ओके, नाउ HCF एंड LCM, द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM। ओके, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी अपन बहुत टाइम से करते हैं, प्राइम फैक्टर करके कॉमन फैक्टर्स निकाल के। देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं HCF और LCM, इसके बाद इसका लॉजिक समझेंगे कि HCF एक्चुअली होता क्या और LCM एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मैंने सेम ही एग्जांपल लिए हैं जिससे कि और क्लैरिटी है एग्जांपल में कि HCF और LCM होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं अपन 12 के, इट विल बी 2 × 2 × 3, इट मीन्स 2 square × 3। ओके, नाउ 16, 2 × 2 × 2 × 2, it is 2 raised to power 4. Okay, same here also. 12 is 2 × 2 × 3, and 16 is 2 × 2 × 2 × 2. It is 2 square × 3. It is 2 raised to power 4. Clear? HCF here will be 2 and 2 common, 2 and 2 common, 3, 2 and 2 which are not common, so this will be the HCF 4. Okay, in this form we can calculate, and LCM here we can calculate LCM also. 2 2 common, 2 and 2 here is also common. Now the remaining 3 this, 2 and 2 this, 2 2 is 4, 12, 12 to the 24, 24 to the 48. Is it clear? HCF is 4 and LCM is 48. Now it is highest common factor and the number is least, and least common multiple the number is highest. ये कैसे हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का वर्ड लीस्ट था और आंसर आया बड़ा, और यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर है और ये हाईएस्ट में क्या है 4, ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है ऐसे बड़े से बड़ा नंबर, ऐसे ही हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर जिसकी खुद की टेबल में ये दोनों एग्जिस्ट करते हों। अपन देखते हैं 1 की टेबल में 1 12 एंड 1 16 आर 12 एंड 16। ओके, तो 1 एक नंबर हो सकता है,
2 चेक करते हैं, 2 6 एंड 2 8 ओके, तो 2 कैन बी ए नंबर। नाउ 3 के टेबल में दोनों नहीं आते, 4 3 12 एंड 4 16, 4 ऐसे नंबर है जिसके टेबल में दोनों आ रहे हैं। देन 5 के टेबल में दोनों नहीं आते, 6 के में दोनों नहीं आते, 7 नो 8 के टेबल में दोनों नहीं आते, 9 10 11 12 आगे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हाईएस्ट नंबर कौन सा था जिसके टेबल में दोनों आते हैं, वो है 4, इसलिए इसका HCF क्या है 4। नाउ इसके उल्टा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है ऐसा नंबर, ऐसे सबसे छोटा नंबर जिस इन दोनों की टेबल में जो सबसे पहले कॉमन आता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में सबसे पहले कॉमन आता है। एक बार टेबल लिखते हैं 12 की, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 एंड 12 5 60। ये तो सभी के लिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इजी है। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64 एंड 16 5 80। ओके, अब इन दोनों के टेबल में जो सबसे पहले सबसे छोटा कॉमन जो नंबर आएगा वो 12 इसके टेबल में है, नो। 24 नो, 36 no, 48 is the smallest least number which is coming in the table of both 12 and 16. That means the LCM of 12 and 16 is 48. That is the basic part of HCF and LCM. Okay, now the next topic is Euclid's division lemma. Okay, जो अपन डिवीजन करते हैं नॉर्मल, उसी का एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन दिया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू, जो कहता है इफ a and b are two positive integers then there exists unique integer q and r which satisfy this linear equation a is equals to bq plus r, where r lies between 0 and b. Okay, r the value of r can be 0, r के लिए 0 हो सकती है, बट r will always be less than b. ओके, a is equals to bq plus r एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन है जो अपन डिवीजन करते हैं। अगर a को b से डिवाइड करते हैं, अगर अपन a एज अ डिविडेंड एंड b एज अ डिवाइजर, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं, अगर q क्वोशंट है और सॉल्यूशन के बाद अगर r रिमाइंडर है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, इसी का रिप्रेजेंटेशन है। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही हम HCF भी निकाल सकते हैं दो नंबर्स का। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है 81 and 237. We have to find the HCF of 81 and 237 by Euclid's division lemma. इसमें फर्स्ट स्टेप बहुत इजी है, अपन को डिटेक्ट करना है कौन सा नंबर बड़ा है। As we all know 237 is greater than 81. Is it clear ना? अपन को इन दोनों को कन्वर्ट करना है a is equals to bq plus r वाली लीनियर फॉर्म में। ग्रेटर इज 237, इट विल एक्ट एज डिविडेंड इज इक्वल्स टू 81 एज डिवाइजर। अपन को 81 की टेबल को इस तरीके से बोलना है कि वो या तो 237 के इक्वल हो, डिविडेंड के इक्वल हो, या जस्ट छोटा हो। 81 2 जा 81 1 जा 81, 81 2 जा 162, 81 3 जा 243 which is greater than 237. तो अपन इसको 2 टाइम्स लेंगे प्लस the remainder will be 75. Okay, now it is a is equals to bq plus r. Now this will act as dividend and this will act as divisor. 75 1 जा 75, 75 2 जा 150 which is greater than now from 81, so we'll take as 1. Okay, 75 1 जा 75, 81 minus 75 will be 6. Now this will act as dividend and this will act as divisor. 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, 6 12 जा 72, okay, which is just less than 75. It will be 12 plus remainder will be 75 minus 72 is 3.
Now this will act as dividend and this will act as divisor. 3 2s are 6. This is equals to 6 and remainder will be 0. जब रिमाइंडर जब लास्ट में 0 आ जाएगा तब जो लास्ट स्टेप का रिमाइंडर जो इस बार एक्ट एज डिवाइजर है वो ही आपका क्या होगा, HCF होगा. ओके, दिस इज सिंपल स्टेप. इसी के बहुत सारे एग्जांपल जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में. एक्सरसाइज के साथ और भी